আজকের স্বরূপনগর সবার সাথে সবার মাঝে ভারতের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস পালনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনটি শুভ সূচনা করলেন ১১২ নাগা ব্যাটালিয়নের হাকিমপুর বিওপির চার্লি কোম্পানি ইন্সপেক্টর আদিত্য নারায়ণ জি। এখন শুনুন বিস্তারিত। আজ সারা দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ মর্যাদার মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে ১১২ নাগা বিএনবিএসএফের হাকিমপুর বিওপির চার্লি কোম্পানির উদ্যোগে। এই দিনটি সার্থক প্রয়াসে কর্তব্যরত আধিকারিক ইন্সপেক্টর আদিত্য নারায়ণজি জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি কর্তব্যরত জওয়ানদের সাথে করমর্দন ও মিষ্টি প্রদানের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করেন। এই সময় স্থানীয়দের মধ্য থেকে আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের নিয়ে রোড শোতে অংশগ্রহণ করেন বিএসএফের আধিকারিকগণ। পতাকা উত্তোলনের শেষে কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর আদিত্য নারায়ণ কর্তব্যরত জওয়ানদের সাথে মিষ্টি ও করমর্দন করে শুভেচ্ছা প্রদান করেন। এই সময় স্থানীয়দের মধ্য থেকে আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে জাতীয় পতাকা, মিষ্টি এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে রোড শোতে অংশগ্রহণ করে বিএসএফের আধিকারিকগণ। রোড শো শেষ করে বিগত দিনে শতাব্দীর সেরা সুপার সাইক্লোন আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছগাছালির অভাব মেটাতে
বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে হাত মেলায় আধিকারিকগণ। বর্তমান সময়ে অতিমারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য সতর্কতার বার্তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এসআই যোগেন্দ্র সিং রানা। শুধু তাই নয়, এই সময় ফায়ার ফাইটিং ডেমো পরিচালনা করেন এসআই সুনীল। দেখুন সেই বিস্তারিত তথ্য চিত্র আজকের স্বরূপনগরের পর্দায়। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की हो जाएगा हल्का रुका पानी। अरे मिट्टी पानी को दे देगा। हाँ तो एक आदमी और चवन आ जा। ओके सर। अरे इधर चला सर इधर तो चलो देखो ऐसे कलाकार आप मेरे को नाम ही नहीं पता लगे यार प्लेटफॉर्म में डेमो होता है कभी तीन आदमी वर्किंग के लिए करता है, एक लेफ्ट आता है, पानी भरता है, एक बचता है। ओपी तक तो कंपनी है, पता नहीं 11 साल के लोग हो गया बहुत है। বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির শেষে করোনা ভাইরাস
মোকাবেলায় সতর্কতার বার্তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এসআই যোগেন্দ্র সিং রানা। শুনুন কি বললেন তিনি। मेरे प्यारे साथी सभी शुभकामनाएं। दो वीरों को नमन करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले वीर जिनके त्याग और बलिदान से हम आज तक आज़ाद हैं। दूसरे वो सभी डॉक्टर कर्मचारी जो लगातार इस विश्व महामारी से कोरोना से हमें आज़ाद करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कोरोना एक विश्व महामारी है जो चीन के शहर वुहान से शुरू हुई और बहुत ही कम समय में इसने लगातार लगभग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। आज हमारे देश में भी लगभग 24 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस वैश्विक महामारी से बच्चों और बूढ़ों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह बीमारी छींकने, खांसने और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित करती है और दुख की बात यह है कि अभी तक इस विश्व महामारी का कोई इलाज नहीं मिला। केवल कुछ उपाय और सावधानियां ही हमें इससे बचने में मदद कर सकती हैं, जैसा कि मुंह पर मास्क लगाना। अगर मास्क नहीं है तो सूती कपड़े का मास्क बना लो। बार बार साबुन से हाथ धोना। दो गज की दूरी, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना। और ख़ास बात यह है कि ये नए दौर के तरीके जैसे गले मिलना, हाथ मिलाना, वह सब कुछ समय के लिए बंद है। और अपनी परंपरा के अनुसार दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस सब एकजुट होकर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जल्द ही इस महामारी से आज़ादी पालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। নিউজ আজকের স্বরূপনগরের সাথে থাকার জন্য দর্শকদেরকে সাধুবাদ জানাই। আমি সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজেদের সাথে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সাথে মুখে মাস্ক ব্যবহারকে নিশ্চিত করুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম। প্রদর্শিত হচ্ছে ফায়ার ফাইটিং ডেমো। দেখুন আজকের স্বরূপনগরের পর্দায়। वो आपका गलत तरीके का नमूना हम यहाँ पे पेश करेंगे कि किस तरह से जवान जो फायर फाइटिंग जो यहाँ पे आग लगती है कैंप के दौरान तो उसको ना बुझाने में सक्षम होते हैं। तो वो नमूना आपको पहले यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप लोग आ जाओ। थोड़ा और बजाना था यार। फायर फाइटिंग में कौन सी पार्टी है, इसका क्या काम है, फायर सर्विस पार्टी कौन है, उनको नहीं पता है काम मेरा। और फायर पिकेटिंग पार्टी कौन है।
तो पहले चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर जवानों की यहाँ पे प्रॉपर ड्रिल ना की गई तो उनको यही नहीं पता लगेगा कि मेरा यहाँ पे काम क्या है। अगर कैम्प में आग लग जाए, जैसे कि मुझे पता है अरे वो चलने दो इधर भी लगा दिया फायर पार्टी नाम अपना कार्रवाई शुरू करिए। टिकटिंग पार्टी पार्टी की साइड में जाइए आप। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जवान की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने के कारण उसको यही नहीं पता है कि सिलेंडर किस तरह से खोला जाएगा। और यही कारण आप देख रहे हैं कि आग की जो आग बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे एक जो हुक लेके बंदा खड़ा हुआ है उसको आग को ना खींच के बल्कि उसके आसपास के जो सामान है उसको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो कार्रवाई है बिल्कुल एक गलत तरीके से वो कर रहा है। वो घायल हो गया है और उसके ऊपर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। जले हुए व्यक्ति भी कभी भी पानी नहीं फेंकना है, जो कि नमूना बिल्कुल गलत है। इससे उसकी हालात और भी ख़राब हो सकती है। पेश करेंगे कि आग की जाए। फिर से हम आपको दिखाएंगे सही तरीका कि किस सही तरीके से आग को बुझाया जाता है, उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के दौरान सभी जवान जिसको जिस पार्टी में डिवाइड किया गया है अपनी पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं सामान के साथ में। फायर पार्टी नंबर 1 फायर सर्विस पार्टी, फायर पेटी पार्टी। ठीक है, पहले यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ गया, उसने पूरे कैंप की लाइट को बुझा दिया है। नहीं घायल हो जाता है तो उसको बचाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। क्या जवान घायल हो गया है, उसमें आग लगी हुई है, कंबल की मदद से सबसे पहले इसको बुझाया जाए, लपेट दिया जाए कंबल में, फिर तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। रुक जा तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर उसको यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया जाए बिना समय बर्बाद किए।